Okay, so hello everyone. Hope you are doing good. In today's session, we are going to see Unit 10 from Assistant Professor Syllabus MPPSC. Okay, in this syllabus, first of all, I want you to brief you about कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं. तो सबसे पहले हमें देखना है हिस्ट्री से, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंडिया में कहाँ से आया, कैसे आया, किन कारणों से आया. ठीक है. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचिंग मीनिंग्स के बारे में जानेंगे. व्हाट आर द टीचिंग मीनिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. एंड आफ्टर दैट वी विल सी द डेफिनेशन, नेचर, as well as scope of English in human life. Okay, what is the scope of English language in human life? We will see. Then we will see the development in India, how English language developed in India. And after knowing the development of India, we will have some concept, as well as we will know some basic aims of English language. What are the basic aims of English language? And after that, we will see also objectives of teaching English, as well as we will see methods, approaches, and techniques of teaching English. What are the techniques of the teaching English? If anyone of you want to answer, you can write it down in the comment section. Okay, so this is just your whole syllabus which I have mentioned here. Okay, we will start with chapter number 1, which is language variety, register, style and dialect. इसमें हम जानेंगे कि लैंग्वेज की कितनी वैरायटीज़ हैं, उसके बाद रजिस्टर क्या है, स्टाइल क्या है और डायलेक्ट क्या होता है. ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव, लेट्स सी. सो सबसे पहले जो लैंग्वेज होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है. इट्स नॉट, लैंग्वेज इज नॉट यूनिफॉर्म. व्हाट इज यूनिफॉर्म? एक जैसी. बट जो ये है लैंग्वेज, ये अलग अलग होती है. जैसे कि बहुत सारे इसमें वेरिएंट्स मिलते हैं हमें. ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे है ये अनयूनिफॉर्म है. लैंग्वेजेस अनयूनिफॉर्म, language is not uniform. Okay, so it's change on the basis of context. स्पीकर है, अब हम नेटिव इंडियन स्पीकर्स हैं, हमारा तरीका जो इंग्लिश बोलने का होगा वो बहुत ही ज़्यादा अलग होगा. अगर कोई किसी और कंट्री से है, उसका बोलने का तरीका अलग होगा. फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज बिलोंगिंग टू अफ्रीका कॉन्टिनेंट, देन उसका बोलने का अलग तरीका होगा. Religion also plays an important role. Then the purpose. What is the purpose of speaking English? See, if we are communicating on the international level, then there is a different criteria. And if we are speaking on the very lower level at a school or some unofficial platforms, then the language is really very difficult. ठीक है. और ये सब जो वेरिएशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इसको हम किसके अंदर में पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं लैंग्वेज वेराइटीज, रजिस्टर्ड, स्टाइल एंड डायलेक्ट के अंदर. ओके, सो दिस इज द आवर चैप्टर, लैंग्वेज वेराइटी, रजिस्टर एंड स्टाइल एंड डायलेक्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज वेराइटी की. ठीक है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज वैरायटी? सो लैंग्वेज वैरायटी refers to the different forms of a language used by the different speakers based on social, religion and situation factors. And these main types include regional varieties. रीजनल varieties का एक और नाम है, इसको क्या नाम है? डायलेक्ट. अब जैसे एग्जांपल लेते हैं डायलेक्ट का. Okay, dialect as a variation of language spoken in different geographical areas. Okay, I have told you this is our world. Okay, we are living here in India. Here Europe is there. Okay, so what will we? अब English में भी आप देखेंगे, British English is very different and American English is very different. For example, lift. It is a British English. Whereas elevator, अमेरिका में लिफ्ट को क्या बोलेंगे?
लिफ्ट, एलिवेटर, ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हाईवे, हाईवे इज अ एग्जांपल ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। ओके, okay, so there are so many things. You can have an idea, you can just google it, what are the things, how it is different in British English and American English. Okay, now let's see Hindi dialects. We have Hindi dialects like Bhojpuri is there, Rajasthani is there, Maithili is there, Marathi is there, Udiya is there. Okay, there are so many varieties of language and they are known as dialect. Okay, नाउ वी हैव रीजनल वैरायटीज, जिसमें एक रीजनल है जिसमें एक बहुत बड़ा एरिया आता है। फॉर एग्जांपल अ होल स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी अ रीजनल प्लेस, वेयर एज वी हैव अ सोशल varieties also which is called as social act, social act। ठीक है, अब ये जो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, जो एक पर्टिकुलर एक छोटा सा ग्रुप है, दिस ग्रुप इज स्पीकिंग सम काइंड ऑफ लैंग्वेज, इट इज नोन एज सोशल वेराइटीज। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस पे ये डिपेंड करता है क्लास के ऊपर, एथेंसिटी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और ऑक्यूपेशन के ऊपर। एक एग्जांपल लेते हैं, द वे डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स कम्युनिकेट विद देयर प्रोफेशंस। अब आप देखेंगे जो ये प्रोफेशंस होते हैं इनका एक अलग तरीका होता है, बहुत ही फॉर्मल तरीके से होता है। if someone is educated person, the way he is talking, the way he is behaving is really very different from the other kinds. So like this we have social varieties. Okay, got it. Number one is regional varieties and number two is social varieties. Okay, I hope I am clear to you. We will see now next। अब देखिए, अब जो स्टाइलिस्टिक वैरायटीज होंगी उन्हीं को हम रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर्स। ओके, व्हाट इज रजिस्टर? इट इज द स्टाइलिस्टिक वैरायटीज। अब बहुत सारे लेवल्स होते हैं फॉर्मेलिटी इन इंग्लिश डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनफॉर्मल एंड फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग आता है। ओके, अब जैसे कि आप इंटरव्यू देने गए हैं, जॉब इंटरव्यू, वहाँ पे आप फॉर्मली बोल रहे हैं, और जब आप अपने दोस्तों से बात करेंगे तो आप क्या इनफॉर्मल वे में बात करेंगे, एंड इट इज नोन एज ओनली द रजिस्टर। ओके, नाउ लेट्स सी हिस्टोरिकल वैरायटीज, जिसको हम बोलते हैं डायक्रॉनिक चेंज। Over the period of time several things will be changed। Okay, so now whatsoever change is there, it is considered to be the historical varieties, or you can say diachronic change। Sorry, language evolves over time leading to old, middle and modern English। Not with this is not happen with only English but all the language of the world। so जब हम शुरुआत करते हैं तो जो ओल्ड इंग्लिश है, हम फॉर एग्जांपल ओल्ड इंग्लिश ले लेते हैं चौसर के टाइम पे, दिस दैट इज वेरी डिफरेंट from the modern English that we are speaking today, right? But in the medieval period of the time we have also the Middle English, okay, where the Shakespeare is there। so what is this? This is historical varieties। I have already told you Shakespearean English, thou art, be thou means होता है you, your art, versus modern English, you are। so if if someone is living in the Shakespearean period, he will use this thou art, what does this mean? You are, you can see the difference right here। now let's see some more important points। we have standard as well as non-standard varieties of the language। अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है क्या, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, फॉर्मल वर्जन ऑफ लैंग्वेज है। एग्जांपल स्टैंडर्ड इंग्लिश, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पीकिंग जाती है। वैसे ही हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड है। अब नॉन स्टैंडर्ड क्या होगा, कोई भी अगर स्लैंग है, उसके बाद आपका रीजनल डायरेक्ट आता है, इनफॉर्मल स्पीच आप दे रहे हैं कहीं पे,
दीज आर नॉन स्टैंडर्ड, मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड इसकी कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी आपको. ओके, आई होप आई एम क्लियर विद द व्हाट इज register as well as what are the varieties of the English, English language varieties. So we have regional varieties, social varieties, stylistic varieties, historical varieties, as well as standard and non-standard varieties. Now let's move further with the register. What is register? So register refers to the way language is used based on the context, audience, purpose. There are three main types of registers. रजिस्टर्स के तीन मेन टाइप होते हैं और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? कॉन्टेक्स्ट. आप किस कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज़ को ले रहे हैं, आपकी ऑडियंस कौन है और आपका पर्पस कौन है. सो बिफोर गोइंग डीप इनटू इट, सो आई वांट टू टेल यू समथिंग लाइक इफ यू हैव समवन हु हैव डन एमए, then you have so many opportunities with you. Okay, first of all, what is there? Academics. आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, आप नेट क्वालिफाई कर लीजिए, जेआरएफ कर लीजिए, जेआरएफ के बाद आपको अच्छी खासी पैसे भी मिलने लगेंगे. तीसरा है कंटेंट राइटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजिंग, जिसमें आप कैप्शंस लिख रहे होंगे, स्क्रिप्ट्स लिख रहे होंगे, रील्स तैयार कर रहे होंगे. ओके, सो you if you want to do something like this, you must be aware with the, if you are doing like not this one, if you are doing this thing, then you must be aware about the audience, your purpose. For all digital marketing company, what they are doing, they are bringing all the markets digitally. अपने यूट्यूब पे एज वेल एज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एड्स देखते होंगे, कुछ एड्स इंग्लिश के भी दिखते होंगे. तो जब आपको ये एड्स दिख रहे हैं तो someone have frame it well. So what is the purpose to, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको सेल करना, करेक्ट. So these are what, if you want to pursue a content writing career, then you should be good at register. So I hope I'm clear to you. Now let's talk about three main types of registers. So first one is frozen, formal and consultative. Okay, so we have three kinds of register: frozen, formal and consultative. What is frozen register? So fixed unchanging language used in formal settings. जो भी फॉर्मल में है, आप इसको कुछ फ्रोजन है, एकदम फ्रोज हो चुका है, ये आप हिला नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते उसका, देन इट इज नोन एज द फ्रोजन. एग्जांपल है नेशनल एंथम. अब इसको क्या चेंज कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे नहीं. कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर फ्रोजन रजिस्टर. एज वेल एज रिलीजियस टेक्स्ट, यू कैन, आप इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. ओके, now let's move to the formal register. What is formal register? फॉर्मल रजिस्टर है यूज्ड इन प्रोफेशन, एकेडमिक्स और ऑफिशियल कम्युनिकेशन. ओके, इसका नाम ही है फॉर्मल. तो आप जहाँ पे भी फॉर्मल है, इंटरव्यू दे रहे हैं, इधर पे आप ये वाला. तो अब बिजनेस ईमेल्स करते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, पॉलिटिकल स्पीच करते हैं, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब है फॉर्मल रजिस्टर का एग्जाम्पल. उसके बाद आते हैं कंसल्टेटिव रजिस्टर पे. ओके, यूज इन सेमी फॉर्मल कन्वर्सेशन वेयर गाइडेंस और एडवाइस इज गिवन. एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होगा, जब डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन होगा, तो हम कंसल्ट कर रहे हैं, करेक्ट. वी आर कंसल्टिंग विद समवन, देन इट इज नोन एज कंसल्टेटिव रजिस्टर. नाउ लेट्स सी, there is one more register, casual register. See, I have told you the main three main types of register, first one, second one and consultative register. But अगर हम थोड़ा सा और जाने तो हमें दो और रजिस्टर मिलते हैं. व्हाट इज दैट? कैजुअल.
रजिस्टर, जैसे कि आप किसी को सोशल मीडिया पे हे व्हाट्सअप हेलो हाउ आर यू ये सब करते हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, कैजुअल कर रहे हैं। आपका कोई दोस्त आया है, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, देन इट इज इंक्लूड इन कैजुअल रजिस्टर्ड एंड इंटीमेट रजिस्टर इज देयर। अब जैसे कि कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत सारे सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, उन दोनों के ही बीच में रहना चाहिए। मेंबर्स फैमिली मेंबर्स कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, उसके बाद रोमांटिक पार्टनर्स हैं, तो ये सब बहुत सी सीक्रेटली कर रहे हैं, तो डेट इज कंसिडर अंडर द इंटीमेट रजिस्टर। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कुछ निकनेम्स रख देते हैं, रोमांटिक पार्टनर्स ने एक दूसरे को कुछ निकनेम्स रख दिया। अब ये सीक्रेट है, इन दोनों के बीच में रहेगा। इनसाइड जोक्स, पर्सनल कन्वर्सेशंस, ओके, this will be included in intimate register. In my opinion, there should not be three major types but only the five major types, so please correct it down. There is five main types of registers. Okay, Trojan register, formal register, consultative register, and casual register, and intimate register. I hope I'm clear with you what is register. Okay, now let's see style in the languages, very important. जब कोई भी एक राइटर होता है जो अपना वर्क प्रोड्यूस करता है, जो हमने अभी बहुत सारे सेशंस मैंने आपको लिए हुए हैं, आपने उन्होंने देखा होगा सबकी स्टाइल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, correct? Everyone have a different style to writing any particular work, so that is the reason why it is really very important to understand what is style in language. Style refers to how language is structured and presented in a different context that, ठीक है, जो मैंने आपको तो बता ही दिया है, जो आपका स्ट्रक्चर होगा कि आपने कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो किया है और आपने किसी भी चीज़ को कैसे प्रेजेंट किया है लिख के, then it is considered to be an style. Then we have these kinds of style. First of all, we have formal style, informal style, colloquial style. So formal style used in professional, academics and serious settings. Okay, example, we regret to inform you that you are not selected in your interview. What is this? This is an example of formal style. Then we have informal style. ये यूज़ होता है पर्सनल कन्वर्सेशन में, एज वेल एज ब्लॉग्स लिख रहे हैं आप, कैजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल गोना इंस्टेड ऑफ गोइंग टू, वाना इंस्टेड ऑफ वांट टू। सी इन इंग्लिश व्हेन वी आर स्पीकिंग समथिंग दैट आई विल, so we will produce like this, I'll, you will, what do you say, you'll. So what are these? These are the informal style. Never use this thing in the formal way. You cannot use this one in if you are writing an email to a official purpose. Only use in formal style. You have to put it all, like you have to put it going to. No shortcuts is allowed in the formal style, but in informal way you can use these things. So as a student of the English literature, it is really very important to know what is style, and if you're writing something, then what is formal style, what is informal style, colloquial style. Now let's see what is colloquial style. So colloquial style is a spoken language with the informal expression. Okay, what does this mean? एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग, ये एक आइडियम है, मूसलाधार बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। व्हाट इज दिस? ये एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज थी बट इनफॉर्मल एक्सप्रेशन था, ये देख सकते हैं आप। ओके, देन इट इज कंसिडर्ड इन द colloquial style. Now we have literary style used in poetry, novels and creative writings. I have told you in the beginning. Okay, like as a student of English literature, we are following, we are into literary style. There you have me must aware about so many components of the poetry as well as novels, creative writing as well as drama is also there. Okay, these are also written on various types. Then we have persuasive style.
अब जैसे कि आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, उसके बाद स्पीचेस सुनी होंगी, आर्ग्यूमेंट एसेस भी पढ़े होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन का एक वो होता है मोटिव, वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट करता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, स्पीचेस और आर्ग्यूमेंट एसेज, एंड इट इज कंसिडर्ड इनटू द persuasive style. So are you clear with what is persuasive style? Now let's have an example. Buy now limited time offer. You have me aware about this line. बहुत सारी जगह आपने आप जल्दी से एक्शन ले लेते हैं. What is this called? This is called CTA, call to action. Okay, तो ये हम परसुएसिव कर रहे हैं, किसी को एक्शन लेने पे मजबूर कर दे रहे हैं, करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ लेट्स सी डायलेक्ट. डायलेक्ट क्या है? सबसे पहले जानते हैं डायलेक्ट की डेफिनेशन क्या है. अ डायलेक्ट इज अ रीजनल और अ सोशल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज दैट डिफर्स इन द प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी. सो जो एक डायलेक्ट है उसमें जो वेरिएशंस हो रहे हैं, जो इंडिया में चीज़ें हैं वो अलग प्रोनाउंस करेंगे, और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने सुना होगा, जैसे कि वाइट है उसको वाइट, वाइट बॉल है उसको वाइट बॉल ऐसे बोलेंगे. व्हाट इज दिस? दिस इज रीजनल और सोशल वेरिएशन. उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. अब ग्रामर की बात करेंगे तो अगर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है तो ग्रामर रूल्स भी डिफरेंट होंगे, वोकेबलरी भी डिफरेंट होगी, करेक्ट? नाउ लेट्स सी आर टाइप्स ऑफ डायलेक्ट. तो तीन टाइप्स के डायलेक्ट होते हैं. पहला रीजनल डायलेक्ट होता है, फिर होता है सोशल डायलेक्ट, एंड देन एथनिक डायलेक्ट. ठीक है. जो रीजनल डायलेक्ट होता है ये ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड होता है. सोशल डायलेक्ट होता है वो स्पेसिफिक सोशल क्लास और ग्रुप्स के बारे में होता है. और जो एथनिक डायलेक्ट होता है ये एथनिक कम्युनिटीज में होता है. अब एग्जांपल ले लेते हैं एक. रीजनल का ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इन द बिगनिंग. Then social dialect, the way of our class and the working class people speak. And then ethnic group, African American vernacular English language, as well as there are Indian vernacular language also. Okay, so these are the examples as well as the types of dialects. Okay, there are mainly three types of dialects. Now let's see difference between dialect and accent. अब डायलेक्ट और एसेंट किस तरीके से डिफरेंट है ये देखते हैं. तो डायलेक्ट चेंजेस, सी डायलेक्ट एंड एसेंट. अब जो डायलेक्ट है, चेंज, वोकेबलरी उसकी चेंज हो जाती है, ग्रामर चेंज हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है. बट जो एक्सेंट होता है इसमें ये दो चीज चेंज नहीं होती है, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है. एक्सेंट, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल. white ball, that is not white ball, that's white ball, as well as white, it's not white. Okay, so please note it down that in dialect only, in accent only pronunciation change, but in direct these things will be changed. So vocabulary plus grammar plus pronunciation, अगर ये तीनों चेंज हो रहा है then it is known as dialect. If only pronunciation is changed then it is accent. Now let's have the conclusion. I have already regional social class situation and style. Understanding language register and dialects helps effective communication in linguistic studies. अभी जो जितनी भी हमने चीज़ें जानी इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और ये हमारे सिलेबस में क्या कर रहा है. What these things are doing in our syllabus and what we have do to it, what we have to do with it. So first of all, हमें अगर ये सब चीज़ें पता होंगी तो हम एक effective communicator बन पाएंगे. We will become an effective communicator, as well as it will help in linguistic studies.
Linguistic is really very important. You should, as a masters of English, should be aware of what is linguistic. Okay, linguistic class will be there. It will be available soon. ओके, सो लिंग्विस्टिक की बात की थी, अब लिंग्विस्टिक में ही हम आते हैं, कुछ चीज़ों पे देखते हैं है क्या चीज़ है ये। तो अब हम आते हैं सीधे चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 है डेफिनेशन ऑफ फोनोटिक्स, फोनोलॉजी एंड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश वी take help of different types of organs in our body. It's not only about mouth, it includes lips, lungs, stomach, so many components of the body part. So let's see, we will dive into the deep, don't worry. तो अब देखते हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं फोनेटिक्स की। तो फोनेटिक्स की डेफिनेशन है, फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। Scientific study of the speech sound is known as phonetics. Okay, focusing on their production, transmission, and reception. Okay, see, in your assistant professor examination question can be framed from here also. They will be asked this particular definition and tell you that this is the definition of what. So the answer is phonetics. Phonetics की definition आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम और देखते हैं कि ये एग्जामिन करता है, क्या करता है, साउंड्स फिजिकली मेड, देयर ऑस्टोटिक प्रॉपर्टीज एंड हाउ दे आर परसीव्ड बाय द लिसनर्स। अगर मैं किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं जानता हूँ और कुछ बोलूँगा तो आपको क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज आई एम प्रोनाउंसिंग इज रॉन्ग। आई एम आस्किंग यू समथिंग एज यू आर गिविंग मी समथिंग एज। For example, I want some dal moot. A shopkeeper will be hand over you the namkeen. But you know, dal moot is very different from this namkeen. So what is this? This is, ये हमने इसी सेम चीज को कुछ और बोला। ओके, हमने प्रोड्यूस किया, इट विल नॉट कंसिडर अंडर द फोनेटिक्स और नॉन फोनोलॉजी। इट्स अ रियली वेरी डिफरेंट थिंग। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, तो ये बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं। हर एक क्षेत्र में हर एक चीज़ का, किसी को चीज़ को बोलना वो काफ़ी डिफरेंट होता है। डेट इज़ नॉट कम अंडर द फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ओके, बट जो हम सच में अगर हमने इंग्लिश सीखी है, क्या हम उन्हें बोल पा रहे हैं, उसका कुछ और मतलब तो नहीं निकल रहा है। डेट इज कॉल्ड एज फोनेटिक्स। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स की। तो इसमें 3 ब्रांच मिलती है हमें। एक मिलती है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, सेकेंड नंबर मिलती है ऑसोटिक फोनेटिक्स एंड थर्ड मिलती है ऑडिटरी फोनेटिक्स। सो आर्टिकुलरी फोनेटिक्स है स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वोकल ऑर्गन्स। Whatsoever thing I am producing from my vocal guard, it is considered under the articulatory phonetics. Also take phonetics. Examine the physical properties of sound waves, frequency, pitch and duration. देखिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कई जगह मैं बहुत ज़्यादा जोर से बोल रहा हूँ, कई जगह मैं कम बोल रहा हूँ। करेक्ट। What is this? This is pitch. अब मैं कितनी देर के लिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आज 1 घंटे की क्लास ली, तो मेरा अप एंड डाउन तो हुआ ही होगा। somewhere I am going up and then my voice is becoming low, then I am putting it like this. What is this? This is frequency. एंड देन ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, कि आपको एक अगर कहीं पे गाने बज रहे हैं, ये कितने देर के लिए बज रहे हैं, एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, देन इट इज कंसिडर्ड इन द ऑस्टेटिक phonetics. Now we have third one, auditory phonetics. So focusing on how the human ears perceive speech. अब जो हमारे कान में रिसीव्ड हो रहा है, अभी आपको मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ रिसीव्ड हो रहा होगा, करेक्ट। Now what you are getting, whatsoever thing you are getting right now, it is come under auditory phonetics.
Okay, now let's see the phonology. How phonology is different from the phonetics. So phonology is the study of organization and the function of sound. अब जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. ओके, सी देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक टू यू. देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हमने जेड लिखा हुआ है. इट्स एन अमेरिकन इंग्लिश, बट इन ब्रिटिश इंग्लिश वी यूज एस on this place. Okay, but in my laptop I have downloaded the Grammarly, and Grammarly में जब मैं ये डाल रहा था उसमें ऑटो करेक्ट होता है क्योंकि वहाँ पे मैंने अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट की होगी या फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट है. That is the reason why while I am typing this it is auto corrected. S is replaced by the Z and it is considered in the American English. If I put S then it become British English. Then we have function of sounds. अब जो फंक्शंस होंगे साउंड्स के वो हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, फोनोलॉजी में स्टडी करेंगे. फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, लॉजी आपको कहीं पे भी मिले इसका मतलब स्टडी. लेट्स सी द एग्जांपल. बायोलॉजी, बायो मतलब क्या है, जीव जंतु, उनकी स्टडी बायोलॉजी. दैट इज फोनो. फोनो मीन्स साउंड, साउंड की स्टडी फोनोलॉजी. अब की कॉन्सेप्ट देखते हैं. अब इसमें कुछ चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुनिएगा. सुनिए, फोनीम्स, minimal pairs, syllable structure, stress and annotations. These are the four key concepts of the phonology. If you are not aware with it, you will not able to get the point कि phonology आपसे क्या कहना चाह रहा है. तो सबसे पहले हम phonemes पे देखते हैं. It is the smallest unit. It is this smallest sound unit that distinguish meaning. अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, पैट, ठीक है, पैट. पा पे हम ज्यादा फोर्स लगा ले. पैट, एट बहुत धीरे बोल रहा है. पैट, पैट, पैट. ओके, लाइक दिस वी हैव बैट, कैट. व्हाट इज दिस? These thing that is pronouncing at the beginning, p, pat, bat, cat. Smallest sound unit है ना ये, and that is called as phononyms. Phonemes. It is called phonemes. Now let's see what is minimal pairs. Words that differ by only one sound. Bit, bit, bit. एक साउंड है इसमें, आई इज द कॉमन हेयर. बिट, पिट, इट, इट. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज मिनिमल. एकदम बिट. वेट अ बिट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट. आपको बहुत सुनाई तो दे रहा है, एकदम मिनिमम, बहुत समय के लिए सुनाई दे रहा है. दैट इज कंसिडर्ड एज मिनिमल पेयर्स. नाउ वी हैव syllable structure. The organization of sounds in syllables. Example CVC. CVC is equal to cat. Then we have CAT, cat, CVC. Okay. Now we have stress and annotations. How emphasizes and pitch affects meaning in speech. अब जो आपका जो मीनिंग जो स्पीच में है वो इफेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस एंड एनोटेशंस. आपने पढ़े होंगे एनोटेशन. आप जब किसी वर्क को पढ़ेंगे यू विल सी सो मेनी stress labels are there. You will find annotations also. Okay, and अब जब कोई मेनली आप ड्रामा पढ़ रहे हैं, जब उसको कोई कैरेक्टर, आपको कोई पर्सन एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है
उसको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. Now let's move further. Now let's talk about the what are the organs of the speech. Very important, very important. अब सी, अब जो ऑर्गन ऑफ स्पीच है, आपके कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें? बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं. हम सीधे सीधे आते हैं कि सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी एयर सप्लाई है, दैट इज़ रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट. और एयर कहाँ से सप्लाई होती है? लंग्स से होती है और ट्रेचिया से होती है, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं. तो प्रोवाइड एयर फ्लो नेसेसरी फॉर द स्पीच. इफ आई एम टॉकिंग समथिंग टू यू, air is involved in it. Without air I cannot speak. You can try it. If somewhere there is no air, try speaking, you will listen nothing. So that is the reason why airflow is very necessary for the speech. As well as if I talk about trachea, जिसे हम wind pipe कहते हैं, directs air from the lungs to the vocal cords. vocal cords को कोई air provide कर रही ना. vocal cord कैसे काम करता है? ये मान लीजिए गला है, यहाँ पे आपका vocal cord है, ये वाइब्रेट होता है. Then we produce speech sound. When this vocal cord vibrates with speech, अब vibrate के लिए हमें कोई एनर्जी तो चाहिए पड़ेगी. Then which type of energy we are putting on the vocal cord? In form of air. Then it's vibrating and then we are able to produce the sound. Okay, then we have phonatory system. अब साउंड प्रोडक्शन कैसे होगा? जो मैंने बताया आपको, वोकल गार्ड, जैसे लायनेक्स, वॉइस बॉक्स, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं डेट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. देन ग्लोटिस इज देयर. ग्लोटिस द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स कंट्रोलिंग एयर फ्लो. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल बिफोर. यू कैन सी लाइक दिस, ये वाइब्रेट हो रहा है. देन ग्लूटिस इज देयर. ओके, देन लाइनेक्स इज देयर, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं. नाउ आपने माइंड्स को यहाँ पे देखा होगा, उनके एडम्स एप्पल होता है. व्हाट इज एडम्स एप्पल? ऐसे यहाँ पे एक गले पे देखोगे तो थोड़ा सा लड़कों के उठिया रहता है, और उसकी वजह से लड़कों की जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है. हार्श वॉइस मतलब बहुत कड़क बोलेंगे वो. लड़कियों की आवाज़ पतली होती है बिकॉज ऑफ एडम्स एप्पल. वन मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू. I'm not a student of biology, but I know these things. I hope you also know these things. I'm sorry. Now the third thing is articulatory system, speech modification. अब हमने समझ लिया कि आवाज़ कैसे निकल रही है, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसको करने में. अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, स्पीच मॉडिफिकेशन. तो अब हमने साउंड तो प्रोड्यूस कर दिया, बट अब उसे मॉडिफाई करके हम सामने वाले को दे रहे हैं, जो सामने वाला रिसीवर है. तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका प्ले होता है? टंग. क्या आप टंग के बिना कोई चीज़ बोल पाएंगे? नहीं. उसके बाद लिप्स. लिप्स, अब जब लिप्स बोल रहे हैं, कभी आपको लिप्स को जोड़ना पड़ रहा है, ओ ओ, आप ओ बोल के दिखाइए लिप्स बंद करके. बोल पाएंगे? ओ को बोल के बताइए लिप्स बंद करके. नहीं बोल पाएंगे. देन वी हैव वेलम, सॉफ्ट पैलेटेड, कंट्रोल एयर फ्लोज फॉर नसाल एंड ओवल साउंड्स. अब जो नाक में है फ्लो, अब कुछ चीजें हैं, व्हाट आई एम डूइंग वॉल्यूम. सॉफ्ट पैलेटेड, I'm just producing a sound. Then glottis is there. I have H, H, H. अब H बोल के देखिए, H, H, H. और गले पे हाथ रख लीजिएगा, H, O, O. You will feel it. Okay. Now we have passive articulators. जैसे फिक्स्ड पार्ट है ये, और ये मूवेबल पार्ट्स हैं.
अब मूवेबल पार्ट्स मतलब एक्टिव एंड इमूवेबल मीन्स पैसिव। अब देखिए, टंग है, बिना टंग को हिलाए आप कुछ बोल नहीं सकते, बिना लिप्स को हिलाए आप कुछ बोल नहीं सकते, बिना बिना ग्लूटिस के बोले काम नहीं होगा। बट कुछ फिक्स्ड पार्ट है, आप आपके दांत हैं, आप दांत से कुछ बोलते हैं, नो। बट इट्स ऑल्सो हेल्प अस टू मॉडिफाई आवर फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। ओके, देन वी हैव टीथ, फिक्स्ड है एकदम, बट इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रोड्यूसिंग साइंस लाइक थिन, दिस, बोल के देखिए, थिन, 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 थिन। Okay, then we have alluvial ridge located behind the upper teeth, important for TDS. अगर if you want to say something that includes TDS, then जो आपके ऊपर की teeth है ना, ऊपर वाली, that that will help you to produce this sound. Then we have hard plate, the roof of the mouth, जो हमारे माउथ का ऊपरी भाग है, for SH, शिवांगी, श्रेया, तो आप ये मुंह से बोल रहे हैं। ओके, देन दैट इज कंसिडर, दीज आर दी पैसिव आर्टिकुलेटर्स। ओके, शूज, आई होप आई एम क्लियर टू यू। Now we will have conclusion. In conclusion, I would like to say phonetics focuses on the physical properties of speech sound, while phonology studies their patterns and functions in the language. The organ of speech play a crucial role in the articulations, shaping different sounds that form words and sentences. तो कंक्लूजन में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड है, जिसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देन वी हैव स्टडीज ऑफ पैटर्न एंड फंक्शन इन द लैंग्वेज, जिसे हम ऑर्गन ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, और ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, आई एम सॉरी दिस इज, आई एम सॉरी दिस इज इन फोनोलॉजी एंड दिस इज इन phonetics. Okay, so this is all about the phonology and phonetics. We will move further. Now we will have our another chapter, chapter number 3, that is phonemes, alphaphones, phonetic symbols for English sound. Okay, in AP, Assistant Professor Examination. Okay, phonemes, alphaphones, and the phonetics symbols for the English sound in RP. A phoneme is the smallest unit of the sound that can change the meaning of a word in a language. I have already told you in earlier, I have told you this, मैंने आपको बता दिया है। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ और डेप्थ में जाके इसको, और डेप्थ में जाके इसको समझेंगे। अब देखिए, आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल, पी और बी वाला, पैट, बैट। देन वी हैव टी और डी, टेन, डैन, टेन, टेन, डैन। ओके, एफ और वी, फाइन, वाइन। देखिए, साउंड तो हम सेम निकाल रहे हैं, ठीक है, फाइन, वाइन, यहाँ पे बस आइन, फाइन, वाइन, माइन, ऑल दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी, जो सब चीज़ें सुनने में एक ही लग रही है, बस एक शब्द का ही अंतर आ रहा है, जिसके वजह से मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। ओके, नाउ एलोफोन्स इज देयर। व्हाट इज एलोफोन्स? Allophones is a variation of phoneme that does not change the meaning of word. Allophones occurs due to the contextual differences in pronunciation. अब देखिए, कुछ होता है, जैसे कि पहले एग्जांपल ले लेते हैं, हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। P in pain versus spin, spin.
स्पिन, 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 पिन, पिन। इसमें पीएच नहीं आ रहा है बल्कि स्पिन में पी। पिन, स्पिन, 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 पिन, पिन। यहाँ पे एस साउंड आप बोल के देखिए, एस साउंड आएगा, पिन, पिन, पिन। वेयर इज हेयर, यहाँ पे एच मिसिंग है, देन इट इज एस्पिरेटेड, इट इज अनएस्पिरेटेड। नाउ लेट्स सी इन टॉप versus butter. In top, 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 T is there, and then in butter, flapped in the American English. जो ये T butter, butter, butter. Give me a piece of butter. So this is what this is doing. This is called as alphons. Various, you will see variations of phoneme that does not change the meaning of word. Allophones occur due to the contextual differences of the pronunciation. देखिए, अमेरिका में भी बटर को बटर ही बोलते हैं, मतलब स्पेलिंग तो सेम है, spelling is the same but the pronunciation is different. You can see here spin and pin. What is this? Something is similar but they have different meaning. Okay, now light, see the example, one more example, light versus ball. Ball. So light, clear L, light, ball, 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 ball. La is not very much clear. These are L phones. I hope I'm clear to you. Alphons are predictable variations based on their phonetic environment, जिस environment में है, unlike phonemes which created meaning difference. Phonemes में तो आपको मैंने बताया different हो जाएगा meaning, but alphons है जो predict कर सकता है variations को. I hope I'm clear to you with the alphons. See, you may be wondering what is this RP every time. Okay, RP is received pronunciation. जो whatsoever thing we are receiving through our ear, that is considered to be the RP or received pronunciation. Received pronunciation is the standard accent of British English, often used in the dictionaries in formal settings. आप डिक्शनरीज में देखेंगे, आपने अच्छी कंपनी की अच्छी खरीदी हुई ऑक्सफोर्ड की, you will find these things. Below the phonetic symbols are representing the consonant and vowel sound in received pronunciation. कि आपको वहाँ पे जो भी वर्ड्स है उसके जस्ट बाद आपको उसका प्रोनाउंसिएशन दिखेगा डिक्शनरी में. ओके, now let's see some more example. Now you will have much interest. Consonant sound in received pronunciation. ठीक है. See, there is so many things I have mentioned here. प्लोसिव्स, जो हम स्टॉप्स लेते हैं जब कुछ बोल रहे हैं, कोई वर्ड बोल रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो लेते हैं स्पाउसेस. तो सी पी, पिन, पिन, पी पहले बोल रहे हैं, फिर इन में थोड़ा सा पाउज लेके फिर बोल रहे हैं, पिन, बिन, टेन, डेन, कैट, गो, गो. If something like this you will see, then it is plosives, stops. Whereas fricatives, what is this? If these things you will see, f, fine. यहाँ पे f को धीरे से बोल रहे हैं और ये वाला जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं. और इसमें क्या हो रहा था, पिन. तो ये वाला साउंड जो है ये हम बहुत फोर्स के साथ बोल रहे थे और ये हल्के से बोल रहे थे. बट अब यहाँ पे हम फाइन, ये धीरे से बोल रहे हैं, वाइन, थिन, थिन, हिज, दिस, सी, जू, सू, मेजर, मेजर, मे, जर, जर, मेजर. I hope I'm clear to you. Then we have affricates. अब जो दो वर्ड होंगे, चिन, 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 थिन, थिन, झैम,
jam, 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 man, man, net. It will take you time to understand these things. First of all, you have try to pronounce it. You what you can do, you can have an book, a good dictionary, then you will find several things in it. Okay, okay, so just focus on this. Then we have these things: affricates, nasals, approximants, lateral approximants. Nasal, I have already told you earlier, M and O, man, man, nat, sing. Okay, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will clear your doubt. अब आते हैं वोवल साउंड्स पे, आते हैं रिसीवर प्रोनाउंसिएशन पे. अब हमें मिलता है मोनोथोंग्स, सिंगल वोवल साउंड है. और फिर एक मिलता है मोनोथोंग्स के बाद क्या मिलेगा, डिप्थोंग्स, ग्लाइडिंग वोवल साउंड. व्हाट इज मोनोथोम्स? मोनोथोम्स इज single vowel sound, while diphthongs is gliding vowel sound. So let's see what is monothongs. तो जो शॉर्ट वॉवेल्स है ना, सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आई ई ए ई, आई ए ई आई ओ ए, यू ए. नाउ वी हैव हियर एग्जांपल. आई, bit, bit, phonetic symbol I. E, bat, bat. E, ae, kite, kite, kite. Then we have ulta v, cup, cup. Then we have ulta a, caught, caught. Then we have ulta u, book, 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 book. Where is my book? Then ulta e, about, about. E sound is there. Okay, these are called as monothongs. And we have also long vowels is also there. For example, I E U C A E U, C C E E हम बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस कर रहे हैं. ओके, ब्लू, लॉ, कार, बर्ड, बर्ड, ड ड बहुत देर तक आ रहा है, बर्ड, बर्ड. ओके, लाइक दिस ऑल्सो वी हैव डाइथोंग्स. डाइथोंग्स में दो बार आएगा है ना, इसमें हमें दिख ही रहा है ग्लाइडिंग वॉवल्स हैं. डाई मतलब दो. फोनीम्स लेते हैं, एग्जाम्पल वर्ड्स लेते हैं, फोनेटिक सिंबल समझते हैं. ई आई, फेस, फेस. देन वी हैव ए आई, प्राइस. देन वी हैव सी आई, च्वाइस. ए यू, गाउट. ए यू, माउथ. नियर, ईयर, स्क्वायर. You may be wondering what is this nonsense. I am not able to getting your point. You may be saying what is this surfboard. एकदम ऊपर से. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, पांच बार, जितनी बार आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखिए, समझिए, अपने से कोशिश करिए, डिक्शनरी लीजिए, प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करिए. यू विल अंडरस्टैंड what are these things and how to pronounce it clearly. Okay, it will help you in effective communication purposes. Now we will have the conclusion. Phonemes are the distinct sound unit that change word meaning. Okay, यहाँ पे हमने क्विक समरी डाल दी है मैंने आपके लिए. Phonemes are distinct sound unit that change word meaning. अगर word का meaning change हो रहा है, that is called as phonemes. जैसे कि हमने देखा fat, at is there, bat. ये शब्द आपको पूरा चेंज ही कर दे रहा है, that is phonemes. Allophones are the variations of the sounds that do not affect meaning. मीनिंग अफेक्ट नहीं होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. पिन, स्पिन. अगर कोई व्यक्ति एक स्पिन बोल रहा है, एक पिन बोल रहा है, आपको सेम ही सुनाई देगा. ओके, दैट इज एल्फोन्स, एल्फोन्स. देन फोनोटिक सिंपल्स, आई पी ए. आई पी ए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. आई पी ए, इंटरनेशनल फोनोटिक्स अल्फाबेट्स. रिसीवर प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश has 24 consonants, 7 short vowels, 5 long vowels and 8 diphthongs. Very important point.
How many consonants are there? You may say 26 consonants, or you may say 5 minus 21 consonants. No, there are total 24 consonants in English. As well as how many vowels are there? Not 5 vowels are there. 7 short vowels are there. 5 long vowels. What? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. These are long vowels. आपको स्कूल में हमेशा लॉन्ग वोवल्स पढ़ाए जाते हैं, कभी आपको शॉर्ट वोवल्स पढ़ाए ही नहीं गए हैं. दैट इज द रीजन व्हाई यू डोंट हैव एनी आइडिया. देन देयर इज 8 diphthongs which I have mentioned in this video. This video is very helpful for those who have done masters and are much interested in communication. Please share a lot this video to your friends and whosoever thinks that it is really very helpful for them. Now we will have chapter 4, Basic of Transformation Generative Grammar, TGG. For this class, it's all. We will have this chapter in our next session or in next video. It's part 1, part 2 is upcoming. So stay tuned. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. See you in the next class. Thank you so much for the joining me. I hope you like my video.